aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 2nd September 2021. So let's start today's discussion. The first article states that 200 army personnel for Zapat exercise. Now, what is this article? So, recently from 3rd September to 16th September, there will be an naval exercise, or we can say there is an exercise that will be conducted in Russia, which is known as the Zapat exercise of 2021, in which India is taking part in it as a participating member. Okay, so if we talk about the article, so this is an contingency of, it is a contingent of 200 army personals. Total 200 army personals will participate in this zapat in total. Okay, and which will be held in Nizhny. Nizhny is in Russia. Nizhny from 3rd to 16th of September, and there are total 17 countries who are invited to be a part of it. Out of 17 countries, 9 countries are there as the participating members and 8 countries are there as the observing member, जिसमें China and Pakistan आते हैं. ठीक है, this was the introduction of this Zapat 2021. Then if we talk of this exercise, which is known as Zapat 2021, it is one of the theater level exercise of the Russian armed force. और इंडिया की तरफ से जो है, इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे, that is the Naga battalion. Naga battalion is the Naga army will participate in this exercise. The Naga battalion will participate in it, and the exercise main aim. The aim of this exercise is to enhance the military and strategic ties among the participating nations while they plan and execute their exercise. So the main aim is to have a proper improvement or enhancement of their military and strategic plannings with all the participating members, that is all the 9 country members. So if we speak of the 17 countries, कौन है in total? 17 countries में जो है रशिया ने, मतलब रशिया is the main we can say the originating or the host country of it. जो इसमें participating 9 members है, they are Mongolia, then Armenia, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Siberia या सिब्रिया भी बोलते हैं, रशिया, इंडिया एंड बेलारूस. ये टोटल 9 कंट्री है. आई रिपीट इट्स मंगोलिया, देन आर्मेनिया, देन कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सिबेरिया, रशिया, इंडिया एंड बेलारूस. तो ये टोटल 9 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है. ये इनको छोड़ के देर आर अदर 8 ऑब्जर्विंग कंट्रीज ऑल्सो, जिसमें कि हमारे पाकिस्तान आ रहे हैं, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, देन उज्बेकिस्तान एंड श्रीलंका. सो ये टोटल 8 ऑब्जर्विंग कंट्रीज बनकर इस एक्सरसाइज में मेंबर बन रहे हैं. The Indian contingent has put through the strenuous training schedule which encompasses all the facets of the conventional program. So इसके मतलब इसमें पार्ट लेने के लिए इंडियन आर्मी जो नागा बटालियन पार्ट लेने वाले हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल में डाला था, सो दैट दे कैन बी पार्ट ऑफ इट और मोर एफिशिएंटली वो अपनी इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर सकें. This month, Army will take place in the multinational exercise Peace Mission in Russia with 200 strong battalions from Sikhli Infantry. ठीक है, टोटल 200 आर्मी बटालियन इसमें पार्ट लेने वाले हैं. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था कि जपद है क्या. ठीक है, प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछ सकते हैं कि जपद वॉज रिसेंटली इन पार्ट. फिर कौन से कंट्रीज़ इसके पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स थे, कौन से कंट्रीज़ उसके ऑब्जर्विंग मेंबर्स थे, इंडिया की तरफ से किस मिलिट्री किस आर्मी ने इनको मतलब रिप्रेजेंट किया था या वहाँ पे पार्ट लिया था. सो वो सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है इस आर्टिकल से. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. आसाम वेटलैंड एट रिस्क टिल डंपिंग स्टॉप्स एक्टिविस्ट. नाउ व्हाट इज़ दिस? कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ सुना था जिसमें कि एक लेक के बारे में या फिर एक प्रॉपर वेटलैंड की बात की गई थी, दैट इज़ द दीपोर झील.
राइट। तो दीपोर बिल के रिलेटेड हमने नाम सुना था कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोटिफिकेशन लाया है या गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला है, नोटिफिकेशन दिया है या एक वार्निंग दी है कि दीपोर बिल के पास जो डंपिंग होता था कचरों का, उसको बंद करेंगे। तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन ही डाला गया था, एक अनाउंसमेंट ही डाला गया था अब तक। तो ये क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन डालोगे, नोटिफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला, नोटिफिकेशन से काम बंद नहीं होगा, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस आपको लेने ही पड़ेंगे। So the green activists in Assam says that Environment Ministry's recent notification on the eco-sensitive zone of Deepor Bhil Wildlife Sanctuary is meaningless until and unless the government puts a stop to the मतलब गार्बेज और डंपिंग ऑफ द गार्बेज एट दी वेटलैंड। ठीक है, तो एक चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है अबाउट द वेटलैंड। दूसरी चीज़, ये जो सेंचुरी है, ये जो दीपोर बिल सेंचुरी है, इसका प्रॉपर अगर स्क्वायर किलोमीटर देखें तो 4.1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हमने लास्ट आर्टिकल में भी किया था। और ये चीज़ बोला जाता है कि ये एक्चुअल प्रॉपर गुवाहाटी में सिचुएटेड है। जब सीजन्स के हिसाब से ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो व्हेन इट इज़ समर के टाइम पे वो एक्सपांड हो जाता है टिल 30 स्क्वायर किलोमीटर्स, और वही विंटर के टाइम पे हमारा ये जो वेटलैंड है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में कॉन्ट्रास्ट या रिड्यूस हो जाता है। दीपोर बिल का आसाम में क्या इम्पोर्टेंस है अगर मैं बात करूं, तो आसाम में एक ही वेटलैंड है विच इज़ द दीपोर बिल वेटलैंड। इट इज़ आसाम्स ओनली रामसर साइट। इट इज़ आसाम्स ओनली रामसर साइट। ठीक है, एंड क्योंकि आसाम में एक ही वही डेजिग्नेटेड है अंडर द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ रामसर कन्वेंशन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये चीज़ बोली जाती है कि जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री था, उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया था सिर्फ कि वी विल स्टॉप दिस डंपिंग, जो कि इको सेंसिटिव जोन में किया जा रहा है। और एक्टिविस्ट और वहाँ के एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि नोटिफिकेशन अलोन कैन डू एनीथिंग, इट इज़ मीनिंगलेस अनटिलनेस आप उसको स्टॉप ना करो, क्योंकि जो सीपेज है और जो ये डंपिंग की जा रही है, इसकी वजह से जो सेंचुरी है वो ऑलरेडी टॉक्सिक बन चुका है। टॉक्सिक बन जाना मतलब सिंपली है कि उस जगह के जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी बायोस्फीयर्स है, उसको अफेक्ट हो रहा है। सो एक सेंचुरी में ही, सेंचुरी के पास जो एक प्रॉपर उनका एक डेवलपमेंट कमेटी है, उनके जो हेड है बकुल रोंगपाई। ठीक है, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द डेवलपमेंट कमेटी ऑफ दीपोर बिल। उनका ये वो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं और उनका ये बोलना है कि ये जो आप जब तक इसको पूरी तरह बंद नहीं करोगे, इट विल नॉट स्टॉप। प्रॉपर एक नोटिफिकेशन डालने से चीज़ें सुधरेगी नहीं। अब तो ये आर्टिकल आया था रिलेटेड टू दिस। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रामसर साइट क्या है, इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं और कब से क्या स्टार्ट हुआ है। रिसेंटली अगर अभी इन टोटल बात करूँ, इन टोटल इंडिया में जो है अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन हमारे 46 रामसर साइट्स हैं इंडिया में अभी तक करेंटली। और ये जो टर्म है रामसर साइट, ये जो है इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड के अंडर डाला गया था। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कन्वेंशन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड के अंडर एक ट्रीटी साइन की गई थी, या एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके बाद से हम ये रामसर साइट इसको बोलते हैं। जो रामसर नाम है वो क्यों यूज़ किया जाता है, रामसर नाम इज़ बेसिकली, ये जो ट्रीटी है वो ईरान में एक जगह था जिसका नाम है रामसर। ठीक है, ईरान में इस जगह पर इस सिटी में साइन की गई थी, इसके वजह से इसको हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। सो 1971 में रामसर ईरान में ये कन्वेंशन साइन हुआ था, एंड जिसके बाद से हमारा प्रॉपर इसका फंक्शनिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेटेस्ट जो मैंने जो 2021 में अगस्त तक में 4 नए और साइट्स जोड़े हैं, जिसको मिला के हमारे टोटल 46 रामसर साइट्स हैं। एक हरियाणा में जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क वेटलैंड जोड़ा है, देन हरियाणा में बिंदवासा, देन गुजरात में थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और गुजरात में वडावना वेटलैंड वडोदरा। ठीक है, तो ये 4 वेटलैंड्स जोड़े गए हैं रिसेंटली इन द रामसर साइट। 2020 की बात करो, 2020 में भी कुछ साइट्स जोड़े गए थे, जैसे सोकर विच इज़ इन लद्दाख।
सोकर जोड़ा गया, महाराष्ट्र का लोनार लेक, ठीक है। देन आगरा में सुर सरोवर लेक, जो किथम लेक जिसको बोलते हैं, वो जोड़ा गया था। देन उत्तराखंड में असम बैरेज, देन बिहार में कन्वर लेक या कबल ताल जिसको बोलते हैं, और कोलकाता का सुंदरबंस रिजर्व, ये सबको 2020 में हमारे रामसर कन्वेंशन में जोड़ा गया था, ठीक है। एक जो नाम हमने रिसेंटली सुना था जिसके बारे में, वो सांबर लेक सुना था, विच इज़ दी लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, ठीक है, वो भी रामसर कन्वेंशन में आता है। तो थोड़ा रामसर साइट या रामसर के बारे में जानते हैं। रामसर का नाम का मतलब मैंने आपको बता दिया है, इट इज़ अ प्लेस इन ईरान जहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके जैसे उसको हम रामसर बोलते हैं। रामसर साइट्स होते क्या है, सो कहीं पे भी जो अगर वेटलैंड्स हैं, ठीक है, वेटलैंड इज़ बेसिकली हम उसको बोल सकते हैं जो जिसको हम हिंदी में यूजुअली दलदल बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसी एरियाज़ जो होते हैं, दलदल जैसी एरियाज़, ये इकोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये सब जगह जो हैं ये हमारा एक बफर जोन बनता है साइक्लोन्स और सुनामीज़ के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज़ आते हैं, माइग्रेटिंग डाइवर्सिटीज़, और बहुत स्पीशीज़ यहाँ ऐसे वेटलैंड्स पे आके रहते हैं। सो जितने भी ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम रामसर साइट के अंदर कंक्लूड कर देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट दैट वेटलैंड, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड द स्पीशीज़ दैट आर लिविंग देयर, ठीक है। सो रामसर कन्वेंशन प्रॉपर जो साइन हुआ था उसके हिसाब से कोई भी वेटलैंड अगर रामसर कन्वेंशन के अंदर आया तो इट इज़ कॉल्ड एज रामसर साइट, ठीक है। फिर वो सारे जगह को हम रामसर साइट बोलते हैं। आफ्टर 1971 में हमने देखा था ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, और बाद में यूनेस्को में भी ये जोड़ दिया गया इन 1975, ठीक है। इंडिया भी रामसर कन्वेंशन का रामसर साइट्स या रामसर कन्वेंशन जो है उसमें इंडिया का भी पार्ट है। इंडिया जो है रामसर कन्वेंशन के साथ ट्रीटी उन्होंने या फिर जो प्रॉपर एग्रीमेंट है वो 1 Feb 1982 में साइन किया था। 1 Feb 1982 के बाद से इंडिया के कुछ साइट्स को रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड कर दिया गया। लेटेस्ट अब तक हमारे पास 46 रामसर साइट्स हैं। जो लार्जेस्ट रामसर साइट है हमारे पास इंडिया में, दैट इज़ द सुंदरबन, जो अभी पिछले साल ही जोड़ा गया। इट इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर ये लार्जेस्ट हो गया। देन लार्जेस्ट के बाद नेक्स्ट आता है जो फर्स्ट हमारा रामसर साइट था, तो चिलिका लेक, नाम सुना होगा आप लोग ने। चिलिका लेक इकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चिलिका लेक विच इज़ इन ओडिशा, वो हमारा सबसे पहला रामसर साइट था, चिलिका लेक। देन कालादेव नेशनल पार्क, ठीक है, कालादेव नेशनल पार्क जो है वो हमारा राजस्थान में है। ये 2 साइट्स हमारे सबसे पहले रामसर साइट्स बने थे इंडिया में, ठीक है। फिर अगर मैं क्वेश्चन ये आता है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, तो यूपी है इंडिया में। उत्तर प्रदेश इज़ द स्टेट विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। टोटल 8 रामसर साइट्स सिर्फ यूपी में सिचुएटेड है। टोटल 8 वेटलैंड जो हैं वो यूपी में रामसर साइट के अंदर आते हैं, ठीक है। और जैसे हमने सबसे लार्जेस्ट देखा, सबसे स्मॉलेस्ट जो वेटलैंड है या जो सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड इंडिया में आता है, दैट इज़ द रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो है ये सिर्फ 20 हेक्टर एरिया में फैला है, और रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। सो द सबसे स्मॉलेस्ट जो वेटलैंड है विच इज़ रेणुका, सबसे लार्जेस्ट है सुंदरबन, सबसे पहला चिल्का एंड कालादेव, ठीक है, टोटल 46, हाँ, सबसे ज़्यादा है यूपी में। सो ये कुछ चीज़ें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए जानने के लिए। और अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में बता देती हूँ आप लोग को, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में हमारे पास टोटल 2400 रामसर साइट्स हैं वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। और सबसे पहला जो रामसर साइट या वेटलैंड जो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में सिलेक्ट किया गया था या बनाया गया था, वो ऑस्ट्रेलिया का कॉर्बॉग पेनिनसुला था। उसको उधर उस जगह को सबसे वर्ल्ड का सबसे पहला रामसर साइट वही था। उसके बाद अभी के टाइम पे लार्जेस्ट अगर हम देखें, लार्जेस्ट वर्ल्ड में रामसर साइट किसका है, तो यूनाइटेड किंगडम का जो एक साइट है रामसर साइट विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के हिसाब से तो सुंदरबन है, बट वर्ल्ड के हिसाब से यूके है, ठीक है। एंड एवरी फेब
2, एवरी February 2 इज सेलिब्रेटेड एज वेटलैंड डे फॉर द कन्वेंशन, क्योंकि कन्वेंशन अगर हमने देखा था 2 Feb को कन्वेंशन प्रॉपर साइन हुआ था, ठीक है। सो रामसर साइट्स के ये कुछ वर्ल्ड के डेटाज है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और रामसर साइट जो है या रामसर कन्वेंशन जो है वो कोलैबोरेशन में काम करता है। अब किसके साथ? तो IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, देन बर्ड इंटरनेशनल्स, देन वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, वेटलैंड इंटरनेशनल्स, फिर हाँ, ये सब लोग के साथ वो कोलैबोरेटिव में काम करते हैं रामसर कन्वेंशन, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी थी हमारे लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स कि रामसर साइट्स है क्या, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Okay, so the next article states Ladakh adopts state animal and bird. ठीक है, so Ladakh has chose or we can say appointed नहीं बोल सकते, but yes, adopted 2 species from that area as the state animal. जैसे national animal national bird होता है, वैसे state animal and state bird. Animals में बात करूँ तो it is a snow leopard and bird में it is black neck crane. So Ladakh on Wednesday adopted 2 endangered species, snow leopard and black-necked crane, as the state animal and state bird. After it was carved out as a separate union territory from the states of Jammu and Kashmir. ठीक है, स्नो लेपर्ड्स एंड ब्लैक क्रेन जो है ये दोनों स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से एक एंडेंजर्ड भी है, कहीं ना कहीं उनको कंजर्व भी इसी बहाने करेंगे। ब्लैक नेक्ड क्रेन वॉज ओनली फाउंड इन लद्दाख रीजन एंड इज देयरफॉर इट इज चोजन एज द स्टेट बर्ड ऑफ देयर, ठीक है। सो ये दोनों ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं अकॉर्डिंग टू दी काउंसिलर्स ऑफ दैट चुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ब्लैक नेक्ड considered loyal couples are found in Ladakh Changthang region only. लद्दाख में भी जो रीजन है विच इज़ नोन एज चैंगथांग वहाँ पर ही पाया जाता है। और स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो वर्ल्ड में इट इज़ कैटेगराइज एज वनरेबल, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे हैं और IUCN लिस्ट के अंदर उनको वनरेबल में क्लासीफाई किया जाता है। सो प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जान लेते हैं ये स्नो लेपर्ड के बारे में, इसका साइंटिफिक नाम क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं अबाउट इट्स स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक क्रेन। ओके, सो स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें सबसे पहले उनका साइंटिफिक नाम जो है दैट इज़ पैंथेरा यूनसिया। पैंथेरा यूनसिया इनका साइंटिफिक नेम है। एंड स्नो लेपर्ड इज़ कंसिडर्ड द टॉप प्रीडेटर्स, ठीक है। स्नो लेपर्ड इज़ कंसिडर्ड एज द इंडिकेटर एंड द हेल्थ ऑफ, क्योंकि ये चीज़ इकोलॉजी का पार्ट अगर हम देखें इट इज़ नोन एज द की स्टोन और वी कैन से द टॉप प्रीडेटर, बिकॉज इनके रहने से हमें उस माउंटेन एरियाज़ का पता चलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे कुछ सेनेटल स्पीशीज़ होते हैं। सेनेटल स्पीशीज़ क्या होता है कि उनके ना रहने से हमें पता चलता है कि उस एरिया का क्या है। जैसे कि अगर किसी एरिया में आपको ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, सो बटरफ्लाई इज़ अ सेनेटल स्पीशी, बिकॉज बटरफ्लाई वहाँ पे रहना मतलब वहाँ पे उतनी वेराइटी ऑफ फ्लावर्स हैं, इसके लिए बटरफ्लाई है वहाँ पे। फिर कुछ एरियाज़ में अगर आपको दिख रहे हैं एल्गे फंगाई, तो वो क्या दिखा रहा है कि एनवायरनमेंट डिटोरेट हो चुका है जिसकी वजह से ये डिकम्पोजर्स इतने बढ़ चुके हैं। देन अगर महाराष्ट्र की बात करें, जैसे अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट का जो की स्पीशीज़ है या वो है नीलकरंजी। तो ऐसे कुछ स्पीशीज़ हैं जो उस एरिया के बारे में हमें बताते हैं। सो लद्दाख का जो एरिया है उधर के जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में प्रॉपर अगर आपको जानना है कि उस एरिया का क्या है तो यू कैन कम टू नो अबाउट इट्स बाय दी स्नो लेपर्ड्स। सो स्नो लेपर्ड इज़ कंसिडर एज द हेल्थ ऑफ दैट माउंटेन, क्योंकि उनके पोजिशंस के हिसाब से हमें उधर का फूड वेब, उधर का इकोसिस्टम और इकोलॉजी पूरी तरह समझता है, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स जो हैं प्रॉपर आपको माउंटेनियर रीजन्स में ही मिलेंगे, दैट इज़ द सेंट्रल एंड द सदर्न एशिया। सेंट्रल एंड सदर्न एशिया के पार्ट है हमारे स्नो लेपर्ड। और इंडिया की जोग्राफिकली देखो जाए तो इंडिया में कहाँ मिले जाते हैं तो वेस्टर्न हिमालय जो है हमारा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न हिमालय में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। ईस्टर्न हिमालय में हमारा उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे ये, ठीक है। सो स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हेमिस जो है इनका लद्दाख एरिया, वहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे इंडिया में आपको स्नो लेपर्ड्स मिलेंगे,
ठीक है, गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड मतलब अच्छे अमाउंट में आपको स्नो लेपर्ड जो है वो हेमीज नेशनल पार्क में ही आपको दिखेगा। अब अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारा जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, उनके रेड लिस्ट में इनको जो है वनरेबल स्टेटस डाला गया है। ठीक है, अगर वैसा बात करें तो जो IUCN का रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, वनरेबल होता है, नॉट एंडेंजर्ड, ऐसे अलग अलग नंबर्स मतलब 1 2 3 के रेंजेस पे इनको डाला जाता है। वैसे ही लेपर्ड को जो है मतलब स्नो लेपर्ड को जो है IUCN के रेड लिस्ट में एज अ थ्रेटन्ड स्पीशीज डाला है, एज अ वनरेबल स्पीशीज, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू एक्सटिंक्शन आप बोल सकते हो। सो इट इज कंसिडर्ड इन दी अपेंडिक्स 1। ठीक है, अपेंडिक्स 1 जो है वो हमारे कन्वेंशन ऑफ द साइट्स ऑफ ट्रेड ऑफ एंडेंजर स्पीशीज़ में ये दूसरा है, मतलब IUCN को छोड़ के जो दूसरा है जिसको हम साइट्स बोलते हैं, CITES, विच इज़ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, उसमें उनको अपेंडिक्स 1 में डाला है। अपेंडिक्स 1 इज़ बेसिकली ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड और क्रिटिकली वनरेबल। और हमारा जो फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के हिसाब से उनको शेड्यूल 1 में लिस्टेड किया है। ठीक है, शेड्यूल 1 इज़ क्रिटिकली डेंजर, जैसा नंबर्स जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट जो है उनकी नंबरिंग्स पे होता है, 1 2 3 4 पे होता है। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नो लेपर्ड को फ्लैगशिप स्पीशीज़ बोला है। फ्लैगशिप स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है कि उस एरिया के बारे में, उस एरिया का ब्रांड एम्बेसडर हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें, वेस्टर्न घाट में आपका ये है नीलकुरंजी स्पीशीज़ हो गए, देन जो थार है, ठीक है, एंटीलोप्स जो है, वो सब हमारे वेस्टर्न के आपको ब्रांड एम्बेसडर्स मिलेंगे। जैसे कि आसाम में पिग्मी हॉक, इट इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट प्लेस, तो उसको हम फ्लैगशिप बोलते हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज़। वैसे ही हमारे जो हिमालयन रीजन्स है उसके फ्लैगशिप में स्नो लेपर्ड को कंसिडर किया गया है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें, हाँ, सो ये उनके लिए अलग अलग प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए थे। जैसे 2009 में उनके लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया था ताकि उनको कंजर्व कर सके। स्नो लेपर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ 21 क्रिटिकल स्पीशीज़, हमारे इंडिया के स्पीशीज़ में 21 ऐसे स्पीशीज़ है जिनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिया है, उसमें से एक है हमारे स्नो लेपर्ड। प्रॉपर अगर हम बात करें कौन से जगह पर पाए जाते हैं, तो एक हेमिस नेशनल पार्क हुआ, देन हमारा पद्माजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क है, दार्जिलिंग। ठीक है, ये सब जगहों पर आपको हमारे स्नो लेपर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी था अबाउट स्नो लेपर्ड। अब हम देखेंगे थोड़ा सा अबाउट द ब्लैक नेक क्रेन। ठीक है, कि ब्लैक नेक क्रेन का मतलब स्पेशलिटी क्या है और उनको क्यों बनाया गया है। सो रिसेंटली ब्लैक नेक क्रेन अगर हम देखें, सो एक्चुअली इसका क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिलीज़ किया था उन्होंने। और वहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क है अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बट कहीं ना कहीं जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनकी वजह से भी पावर डिसीजंस इन्फ्लुएंस होता है। सो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था, सो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने उसको मना कर दिया या दे अपोज्ड इट। क्यों? क्योंकि वो लोग जिस एरिया में यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे थे उस एरिया दैट एरिया वाज द नेस्टिंग ग्राउंड। नेस्टिंग इज़ दी उनका प्रोडक्टिव ग्राउंड फॉर दी ब्लैक नेक क्रेन। तो अगर ये चीज़ करते तो इनका जो है नेस्टिंग ग्राउंड ख़राब हो जाता, हार्म होता, और कहीं ना कहीं वो जो एरिया है नेस्टिंग ग्राउंड को उसको बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज भी माना जाता है दैट एरिया। ठीक है, सो अब हम प्रॉपर देखते हैं अबाउट द ब्लैक नेक क्रेन। सो ब्लैक नेक क्रेन इज़ ऑलमोस्ट सेम साइज़, मेल या फीमेल दोनों ले लो, सेम साइज़ होते हैं। प्रॉपर इनका जो अपर नेक होता है वो ब्लैकिश कलर में होता है, जिसकी वजह से इनको ब्लैक नेक क्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ऐसा बोला जाता है एक्चुअली इनके जो हेड पार्ट है, ठीक है, जो इनका हेड पार्ट है ये पार्ट थोड़ा रेडिश होता है, रेड कलर में होता है, जिसकी वजह से इनको रेड क्राउन भी बोला जाता है, इनको रेड क्राउन भी बुलाया जाता है।
इनकी अगर स्पेशलिटी की बात करें या सिग्निफिकेंस की बात करें, सो द बर्ड इज़ रिजर्व्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ मोनपॉस। मोनपॉस क्या है? तो जो बुद्धिस्ट की एथनिक ग्रुप है उनके लिए जो ये बर्ड्स हैं या जो ये एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलीजियसली हम बोल सकते हैं। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क जिन्होंने मना किया उनके लिए ये स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे जो अभी 6th दलाई लामा है उनका भी ये मानना था कि दैट स्पीशीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इनका जो इम्पोर्टेंस है लद्दाख ही नहीं बट अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देन ब्रीडिंग के बारे में बात करें तो ये वेटलैंड्स के पास पाए जाते हैं। जैसे कि चाइना में अगर हम देखें तो सिचुआई हो गया, तिब्बतन प्लाटो हो गया, इंडिया की बात करें तो लद्दाख रीजन हो गया, ये सब उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ पे उनका मेन नेस्टिंग ग्राउंड हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगहों पर यूजुअली आपको विंटर्स के टाइम पे ये बर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, देन थ्रेड्स अगर हम बात करें तो जो एक फेरल डॉग स्पीशीज़ मतलब एक तरह के स्पीशीज़ है डॉग, ये सबसे बड़े थ्रेड बनते हैं उनको बिकॉज दिस डॉग्स एक्चुअली डैमेजेस द एग एंड चिक्स ऑफ दिस ब्लैक नेक क्रेन। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लॉस ऑफ हैबिटेट भी बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा रीज़न है ह्यूमंस जो अभी कंटिन्यूसली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और ये सब बनाने की बात कर रहे हैं, उसके वजह से भी उनका स्पीशीज़ या हैबिटेट बहुत कम हो गया है। उनके कंजर्वेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया का जो कोलैबोरेशन है उनके अंदर उनको प्रोटेक्ट कंजर्व करने की बात की जा रही है। IUCN लिस्ट में जो है IUCN में उनको नियर थ्रेटन का टाइटल दिया गया है, नियर थ्रेटन के क्लासिफिकेशन या लिस्ट में डाला गया है। साइट्स में भी जो हमने देखा था SITES उसमें भी अपेंडिक्स 1 में इनको क्लासीफाई किया गया है और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें भी उनको शेड्यूल 1 में क्लासीफाई किया गया है। सो दे आर ऑल्सो वेरी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू एंडेंजर्ड हम बोल सकते हैं। सो टू प्रिजर्व देम उन्होंने उधर का स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड उनको बनाया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट स्टेट्स दैट नो कॉल ऑन बाईपोल येट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू असेस सिचुएशन। सो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की बात करें तो हमने देखा था बहुत ज़्यादा केओस हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था। रिसेंटली ममता बनर्जी जो वहाँ की CM हैं उन्होंने बोला कि आप उनका जो 7 सीट्स हैं 7 सीट्स जो है उनके पार्टी के वहाँ पर आप बाईपोल कराओ। बाईपोल इज़ दी मतलब बाईपोल इज़ वी कैन से अगेन इलेक्शंस करवाओ वहाँ पर। ठीक है, बाईपोल इज अगेन डूइंग दैट इलेक्शंस इन दैट एरिया बिकॉज उनको लगा है कि इस एरियाज़ में मतलब उतनी तरह से प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुए हैं। सो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला कि आप यहाँ पर वापस से बाईपोल इलेक्शंस करवाओ। Officials of Election Commission of India are likely to hold a meeting soon to assess the situations in the states where bipole are due. Sources of the commission. By-elections of the assembly seats have been referred to Election Commissions of India. All India Trinamool Congress, All India Trinamool Congress has written to Election Commission of India seeking an immediate announcement of bypolls in 7 West Bengal assembly seats. It has been that there is a steep decline due to the COVID cases in the state and therefore 7 constituencies में ममता बनर्जी wants कि वहाँ पर वापस से इलेक्शंस हो। ठीक है, अब ये आर्टिकल में हम क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से। सो कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ अ प्रॉपर परमानेंट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ बॉडी जिनका मेन काम है टू प्रोवाइड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द कंट्री। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 324 ये बोला है कि देयर शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोवाइड एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द पावर्स ऑफ डायरेक्शन और सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस ऑफ दैट एरियाज इन इंडिया। ठीक है, इट ऑल्सो कंसिडर्स द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 324 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है कि हमें एक इलेक्शन कमीशन बॉडी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बॉडी जो है दोनों लेवल पे काम करता है, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है, दोनों ही पर्सपेक्टिव्स में जो है इलेक्शन कमीशन काम करता है. इनका वर्किंग अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन का वर्किंग फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ 1950, since the inception of 1950 till 1989, ठीक है, 1989 तक 1 मेंबर बॉडी था इलेक्शन कमीशन, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर थे, वो थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि सोल मेंबर थे और जो सारा डिसीजन पावर उनके हाथ में था. फिर 16 दिसंबर 1989 के बाद हमारा वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ. बेसिकली 18 से मतलब 21 से 18 कर दिया गया कि आप अभी 18 साल के तो आप वोटिंग कर सकते हो. सो ये चेंज करने के बाद उन्होंने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए, अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने. सो अभी अगर करेंटली हम देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर सेंटर के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे 3 मेंबर बॉडी है. एक जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ 2 मेंबर्स जो होते हैं दे वर्क एज द इलेक्शन कमिश्नर्स. सो एक हेड बॉडी है ताकि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसल या फिर सिंगल हैंड पावर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है या वो सब चीज़ ना हो, इसकी वजह से उन्होंने ये 3 मेंबर का बॉडी बना दिया इसको. ठीक है, लेटर इट वाज रिपीटेड अगेन इन 1993 और करेंटली देयर इज़ अ चीफ हु इज़ द हेड एंड 2 अदर कमिश्नर्स एट विद द सेम पावर्स हु वर्क इन इट, जिनका अलाउंसेस सैलरीज जो है इट इज़ ऑल सेम टू दी सुप्रीम कोर्ट जजेस. सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो भी अलाउंसेस और सैलरी जो भी जैसी मिलती है वैसा ही सेम इन तीनों मेंबर्स को भी मिलता है. सो बाय चांस ऐसा होता है कि अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डिसीजन है, ठीक है, अगर वो मेजॉरिटी पे नहीं जा रहा है तो ये 2 मेंबर जिसके लिए बनाए गए हैं ताकि सिंगल हैंडेड पावर का गेम ना खेल सकें. ठीक है, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं इनका ऑफिस जो है इट इज़ हेल्ड फॉर 6 ईयर्स, या तो 6 ईयर्स या टिल द एज ऑफ 65. ये दोनों में से जो सबसे पहले होगा वो हो सकता है. या तो आप 6 ईयर्स तक वर्क कर रहे हो या तो आप 65 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर चुके हो. और इनका जो रिमूवल है या तो वो एक्सपायरी या तो रेजिग्नेशन से होता है. ठीक है, सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो इंडिपेंडेंसी है, जो फ्रीडम उनको है, ये सब उनको आर्टिकल 324 ही प्रोवाइड करता है. क्योंकि आर्टिकल 324 ये चीज़ क्लियरली बताता है कि ये प्रेसिडेंट के थ्रू ये एक बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी अपॉइंट करके देगा जिसके हाथ में पूरा पावर रहेगा रिलेटेड टू इलेक्शन, व्हेन इट कम्स टू सुपरविजन, व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग, व्हेन इट कम्स टू द डिसीजंस रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग रिलेटेड टू इलेक्शंस. ठीक है, सो उन सारे ही पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इनके हाथ में है. इट इज़ वेस्टेड इन देयर पावर्स. ठीक है, इनके इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, then advisory, they can advise the president, advisory power, quasi judicial is to re-judge or to see the cases related to it. तो ये सब powers उनके हाथ में रहते हैं. ठीक है, अब प्रॉपर फंक्शनिंग देखें तो क्या फंक्शंस होते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कब होने वाले हैं, देन किस किस को सिलेक्ट किया गया है, कौन से पार्टी से कितने सीट्स हम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, देन क्या क्या मैनिफेस्टेशंस अपने रखे हैं, क्या क्या चीज़ अलाउड है, क्या क्या चीज़ अलाउड नहीं है. लाइक अगर प्रॉपर बात करें तो मतलब मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या रखे हो आप, वो चीज़ आपको बताना ज़रूरी है. आपने क्या सिम्बल्स लिया है, आप एडवर्टीजमेंट के लिए क्या कर रहे हो, कितना पैसे यूज़ कर रहे हो आप उसके लिए. ठीक है, पूरा प्रॉपर डेटा आपको जो है वो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है. ऐसा नहीं कि जैसे दिखाता है यूजुअली कि कोई भी एक मेंबर जो है पार्लियामेंट मेंबर या कोई भी है जो इलेक्शन में खड़ा वो एकदम ही पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकता. ठीक है, अगर आप कितने भी पैसे यूज़ कर रहे हो आपको प्रॉपर बिल दिखाना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा किधर यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, विद प्रॉपर पुलिस का वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग. सो उस पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ थोड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल और द लास्ट आर्टिकल, दैट इज़ हाई ऑनर फॉर नेवल एविएशन. हाई ऑनर फॉर नेवल एविएशन क्यों आया है? क्योंकि रिसेंटली ये चीज़ बोला गया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद सर, वो जो है INS हंसा विच इज़ इन गोवा, INS हंसा को एक अवार्ड देने वाले हैं विच इज़ द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड. ठीक है, तो गोवा बेस्ड ये INS है. ठीक है, और उनको ये अवार्ड देने वाले हैं बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनिंग. अब इस आर्टिकल में हम प्रॉपर देखेंगे कि इंडिया में प्रॉपर नेवी कब से सेटअप हुआ, क्या फंक्शन हुआ, रिसेंटली कितनी चीज़ें हैं, क्या रोल प्ले किया है.
So, President Ramnath Kovind will award the President Color to Indian Navy Aviation ceremonial parade held at INS Hansa, Goa on 6th September. On 6 September and INS Hansa अगर President Color अगर बात करूँ, President Color is the highest honor bestowed to any military. ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में it is the highest honor which can be given to any military. सो नेवल एविएशन केम इनटू एक्विसिएशन, प्रॉपर हमारा नेवल एविएशन जो है 1951 से इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई है, दैट इज़ January 13, 1951 से प्रॉपर इसकी फंक्शनिंग जब स्टार्ट हुई है, जब हमारा पहला INS दैट इज़ INS गरुड़ा, पहला INS गरुड़ा इस्टेब्लिश हुआ था या कमीशन हुआ था प्रॉपर नेवल एयर स्टेशन के साथ। देन उसके बाद हमारा नेवल मतलब एयर स्टेशन बना प्रॉपर 1953 में। टोटल अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करें ओवर कुछ इतने सारे डिकेड्स में हमारे पास इन टोटल अभी अगर कंप्राइजिंग बोलें 250 एयरक्राफ्ट है, जिसमें एयर फाइटर्स, बॉर्न फाइटर्स हैं, कैरियर है, मैरीटाइम रिकन्सिनेंसेस है, देन एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सब अभी इंडिया के पास अवेलेबल है। The Navy was first among the armed forces to be awarded the President's Color. Navy अगर हम तीनों आर्म फोर्स की बात करें तो Navy was the first आर्म फोर्स जिनको प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड दिया गया है। तो पहला जो अवार्ड था प्रेसिडेंट कलर वो दैट वाज गिवन इन 1953। 27 मई 1951 में पहला नेवी प्रेसिडेंट कलर दिया गया था नेवी को, ठीक है, विच वॉज गिवन बाय द देन प्रेसिडेंट मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। द अराइवल ऑफ द फायरफ्लाई एयरक्राफ्ट इन 1958 में जो हमारा फायरफ्लाई आया था उन कहीं ना कहीं इट एडेड एन ऑफेंसिव पंच टू द नेवल एयर स्क्वाड्रन 50-50, ठीक है। एंड ओवर द इयर्स ये चीज़ देखा गया है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है या जो नेवी है ये बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो गया एंड इट इज़ वर्किंग इन अ वेरी गुड वे। सो द नेवी हैज़ बीन वर्किंग वेरी गुड। अभी हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट INS अगर हम बात करें गरुड़ा था, देन गरुड़ा के बाद जो सबसे ज़्यादा कैरियर एविएशन में काम आया है दैट इज़ INS विक्रांत जो कि 1957 में आया था। INS विक्रांत काम हुआ है which also has an integral Seahawk, then Allied Squadron. INS विक्रांत जो है it played a very crucial role when it came to the liberalization of Goa and then Indo-Pak War। ये सब में INS विक्रांत का बहुत crucial role play हुआ है। सो ये कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी थी अबाउट दी प्रेसिडेंट्स कलर और किसको दिया है, रिसेंटली क्या वर्किंग चल रही है। So that was for today. If you like the video, do like and subscribe the channel. Thank you so much.